Yes, so hey guys, how are you all? I hope you all are safe, doing great at your very own homes. Welcome back to my channel, Young Tutor, and today I am here with a very new topic. And today we are starting with the MPL series. So जिनको नहीं पता है MPL क्या है, MPL stands for Mathematics Premier League. So in this we're gonna cover different chapters, many important chapters. तो आजकल का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे एंथे एग्जाम्स हो रहे हैं. सो आई try to cover most of the topics which are the heated topics in the nth exams. So few of the topics which I'll be covering are square and square roots, are cube and cube roots, quadrilaterals, linear equations in one variable, and your percentage, and all these topics I will be covering. So मैं इसमें क्या करूँगी, एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का फर्स्ट या थर्ड पार्ट जो है आपको करके दिखाऊंगी. And I'll let you know some tricks to do, how to do, and I'll be uploading a video on a very daily basis. So yes, let's get started. और हम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सबसे भी करेंगे. सो यस गाइस, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द टॉपिक इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. सो यू नो व्हाट इज स्क्वायर. सो पहले मैं बता देती हूँ, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस स्क्वायर देन आई एम, तो ये भी एक स्क्वायर होता है कि जैसे अगर आप बोलो कि इसका एरिया निकालो, अगर आपको बोलता है कि स्क्वायर का एरिया निकालो, तो आपको क्या लेते, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स साइड है और इसको भी एक्स साइड ले लो. So what do you do? You do x into x is equals to x square. This is the area. और ये जो चीज है ना, इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं. This is also referred as square. ठीक है. अब अगर मेरे को इस स्क्वायर का रूट निकालना है, I told you how to find the square. If I need to find the square root, so the sign is this. एक डिविजन टाइप होता है, इसको अंडर दिस रखूंगी and the answer will come x. Now let me basically explain you what is a square. Whenever we multiply the same number by itself two times, ये मेरा नंबर x था, मैंने इस x को उसी से ही दो बारी मल्टीप्लाई किया. This was my first time, this was my second time. So I multiplied the number x with itself how many times? Two times. So this would be referred as my x. So this would become my x square and this would be referred as my square. So whenever I am having the power as square as 2, so 2 is called as square, 3 is called as cube, वो भी हम करेंगे, but अभी इतना याद रखो कि 2 is called as square. So remember till here. Yes. So let us see what is the first question of our NCERT exercise 16.1 states. What will be the units digit of the square number of all of the following digits? तो ये for example हमारा number है 81, 272 और 799. So एक बार ये जो concept से refresh कर लेते हैं. यूनिट्स डिजिट का मतलब क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ डिजिट्स होते हैं. पहला हमारा होता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स, और ये जो वंस पोजीशन को हम यूनिट्स पोजीशन भी कहते हैं. तो अब वो कह रहा है कि हमें देखना है कि इसका 81 के स्क्वायर, 81 का स्क्वायर में जो उसका वंस पोजीशन या यूनिट्स पोजीशन जो है उसका नंबर क्या है. 272 का जो स्क्वायर है उसका जो वंस पोजीशन होगा उसका नंबर क्या है, और जो 799 जो नंबर है उसका जो स्क्वायर है उसका यूनिट्स डिजिट क्या है. देन हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड इट. वेरी सिंपल. आप सोचोगे कि भाई हमें 81 into 81 करके पूरी कैलकुलेशन के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट देयर इज एन ऑल्टरनेटिव ट्रिक ऑल्सो हाउ टू फाइंड इट. मल्टीप्लाई में आपको सिर्फ लास्ट पोजीशन देखना है. ओनली मल्टीप्लाई द लास्ट नंबर विद इटसेल्फ. Multiply 1 into 1 is 1. So at the units digit of the square of the number 81 and the square will have the digit 1 at its end. इसके लिए अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ना सेकेंड वे जो है इसमें क्या है 272 है, then you have to multiply with 272. Don't multiply it completely but only check the last digit. 2 and 2, when you multiply 2 into 2, 2 into 2 gives you 4.
yes, then 4 will be the answer. In the very third case also same चीज आपने करनी है. आपने 799 नंबर लिया, उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है. 9 into 9 gives you 81. ठीक है, ऐसे करना है. So because I knew what is the square of 1, 2 and 9, I was easily able to find. Okay, sorry. So ये 81 है, but हमें क्या देखना है? Units place. So इसका 8 कट जाएगा and 1 would be the answer. Yes, so because I knew that the square of 1 is 1, 2 is 4 and 9 is 81. That's why I was easily able to solve it. So to those who don't know, let us also help them. So आपको important है कि आप जो है उनके squares from number 1 to 20 बिल्कुल याद कर लो. टू बी ऑनेस्ट मैंने भी सिर्फ 1 to 10 किए, 1 to 10 से भी काम चल जाते हैं. सो यार गाइज, लेट्स मेक अ टारगेट. हमने 1 to 10 कर लिया है, 1 to 20 मैं भी करूंगी, आप भी करोगे. ठीक है, ऐसे करते हैं. सो 1 to 10 हमें जितने आते हैं उसका कर लेते हैं. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square and 10 square. है ना, ये बनता है हमारा पूरा 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर. 1 स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 into 1 2 का, 2 into 2 3 का, 3 into 3 4 का, 4 into 4 5 का, 5 into 5 6 का, 6 into 6 7 का, 7 into 7 8 का, in a very similar manner 8 into 8 9 का, 9 into 9 and 10 का, 10 into 10. 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, 5 into 5 is 25, 6 into 6 is 36, 7 into 7 is 49, 8 into 8 is 64, 9 into 9 is 81 and 10 into 10 is 100. ठीक है, ये जो है आपके स्क्वायर्स निकल गए फ्रॉम नंबर्स 1 to 10. ठीक है, ये आपके क्या निकल गए? स्क्वायर्स निकल गए फ्रॉम द नंबर 1 to 10. आपको जो एग्जाम में है, अगर आपको आए राइट द स्क्वायर फ्रॉम 1 to 10, तो आप जो है ना इसको 1 into 1 पूरा करके नहीं दिखाओगे. आप सिंपली लिखोगे 1 square is equals to 1, 2 square is equals to 4, 3 square is equals to 9 and so on you are going to write. ठीक है, क्लियर? अब मैंने आपको इतनी चीज तो बता दी, बिकॉज वी हैव कवर्ड टिल हियर ऑल्सो. ये भी देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट जो होते हैं ना वो कैसे निकालते हैं. हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट. मैं पहले आपको उसका सिंबल बता देती हूँ. व्हाट इज द सिंबल? सिंबल को क्या बोला जाता है? इट इज समथिंग लाइक दिस. इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज हाउ द सिंबल लुक्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर 9 था. हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, बट बिकॉज आई एम सिंप्लीफाइंग इट, बिल्कुल हम स्टार्टिंग का पोर्शन कर रहे हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू ऑल ऑफ यू. सो 9 को हम कैसे लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे 9 और जो भी उसका नंबर फॉर एग्जांपल x है उसको s लिख देंगे. ठीक है, s लिख देंगे. अब हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड दिस? सो द स्क्वायर रूट्स आर यूज्ड बाय फाइंडिंग टू मेथड्स. दो मेथड के साथ जो स्क्वायर रूट्स होते हैं हमारे, उनके साथ होता है. पहला हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन. जिन्होंने ये चैप्टर एक्चुअली कर भी लिया है ना, जिन्होंने ये चैप्टर कर भी लिया है, वेरी गुड. वॉच माई वीडियो बिकॉज ऑफ रिविजन. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ जाते हैं और पीछे के जो टॉपिक्स होते हैं हम भूल जाते हैं. सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सारी जो चीजें हम रिवाइज करेंगे. सो पहला मेथड हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, विच आर वी गोइंग टू डू टुडे. एंड सेकेंड मेथड वी हैव इज द डिविजन मेथड. कौन सा मेथड होता है हमारा? दूसरा मेथड इज योर डिविजन मेथड. डिविजन मेथड इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड मेथड, बट अगर एक बार समझ आ गया लाइफ टाइम याद रहेगा. प्राइम फैक्टराइजेशन हम बहुत पहले से करते हैं. लेट्स रिवाइज दिस. आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज करके 2 के पेयर्स बनाने हैं. ठीक है, सिंपल. फाइंड 2 के पेयर्स. जिनके 2 के पेयर नहीं बने, इसके भी 2 सिचुएशंस आते हैं. इफ यस और नो 2 के पेयर्स बने, so then it is a perfect square. then it is a perfect square. और अगर नहीं बनते हैं then it is a non perfect square. it is a non perfect square. के लिए square represent करी मैं. ठीक है,
ये हमें पता है सिंपल। अभी हम 9 से ले रहे हैं। ओके, मैं बता दूं पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 2 into 2 is 4, सो दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। बट व्हेन आई एम क्या, अगर मैं बोलूं 2 into 2 is 4, बट क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। हम किसी भी एक नंबर को उसी से दो कोई भी एक नंबर को x into x करें तो उसको हम कभी भी 5 नहीं ला पाएंगे. So hence 5 would never be called as a perfect square, whereas 4 is a perfect square. So this is called as perfect square and a non-perfect square. Yes. So देख लेते हैं by prime factorization method. Prime factorization से अगर हम देखें तो it comes to be like, yes, so it comes to be like अगर हम prime factorization method से करें, 9 को लेंगे, हमें इतना पता है इसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। 3 होता है, 3 3 1, कितना बन गया? एक पेयर बन गया। क्योंकि ये एक पेयर बन गया, सो अंडर रूट ऑफ 9 बिकम्स 3। वेरी सिंपल, इतना सबको पता है। यस, इतना सबको पता है। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल करा रही हूँ, मेरे एक दो वीडियोस में बिल्कुल सिंपल होगा, बट आगे जाके उतना ही जो चीज है इंटरमीडिएट एंड हार्ड बन जाएगा। क्लियर? बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम आर डी शर्मा। आर डी शर्मा से भी लेंगे और हमारा आर एस अग्रवाल से भी लेंगे। ठीक है, आर एस अग्रवाल से भी लेंगे। पूरी कोशिश रहेगी हमारी इन दोनों बुक्स को जो है कवर करने। आपका भी यही काम है। स्टे ट्यून्ड एंड आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस, एंड इस क्वेश्चंस के बारे में हम अपनी अगली क्लास में जो है, अगला लेक्चर जो है उसमें, अपनी वीडियो जो है उसमें बात करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट फॉर 121, then 144, and then 1, and find for 301। ये भी बताना है whether a perfect square, that whether perfect or not, whether these are perfect squares or not. ठीक है, ये भी करना है। So yes guys, if you like this video of Maths with Malik, don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye.